بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اٹس می سر نبیل احمد، اور یہ آپ کا سینٹنسز کے حوالے سے دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا بی یعنی کہاں لگتا ہے، از، ایم، آر، واز، ور، ول بی، اور دوسرے لیکچر میں مجھے یہ بتانا ہے یوزز آف ہیو کا کہاں یوز ہوتا ہے۔ ہیو ایز اے اسٹیٹ ورب، یاد رہے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہم پڑھیں گے اسٹیٹ ورب، دو اسٹیٹ ورب، جس میں سے ایک اسٹیٹ ورب ہم نے بی پڑھ لیا ہے، بی یوز ہوتا تھا انفارمیشن اور پلیس کے لیے۔ دوسرا اسٹیٹ ورب ہے ہیو کہاں یوز ہوتا ہے، کیسے یوز ہوتا ہے، اس کی کتنی فارمز ہوتی ہیں، چلے آئے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ڈیفینیشن ہے اسٹیٹ ورب کی، we use this verb as a state verb to talk about، ہم اسٹیٹ ورب کب یوز کرتے ہیں اور کن باتوں پر یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے آنرشپ، دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے النس، تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے ریلیشن شپ، چوتھے نمبر پر لکھا ہوا ہے کیریکٹرسٹکس۔ اب ان کے مطلب کیا ہیں اور ہوتے کیا ہیں، آئیں یہ دیکھتے ہیں۔ کیریکٹرسٹک کا مطلب ہے خصوصیات، کسی شخص یا کسی چیز میں کوئی خصوصیات ہو اس کو ظاہر کرتا ہے ہیو۔ دیکھیں میں نے 3 ایگزامپلز بھی لکھ کر دیے ہیں۔ بلی کی خوبصورت آنکھیں ہیں، میرے براؤن بال ہیں، اس کا خوبصورت چہرہ ہے۔ اب یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے آنرشپ یعنی ملکیت، میرے پاس بائک ہے، دیکھیں میری ملکیت ہے۔ تمہارے پاس موبائل ہے، یہ بھی آپ کی ملکیت ہے۔ ان کے پاس ایک فلیٹ ہے، یہ بھی ایک آنرشپ ہے۔ پھر ہے رشتہ داری، میرے 2 بھائی ہیں، دیکھیں۔ نمبر 2 میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں۔ نمبر 3 اس کے 4 بہن بھائی ہیں، دیکھیں یہاں رشتہ داریوں کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 4 بیماری یعنی النس، اس کے پیٹ میں درد ہے، تمہارے سر میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، دیکھیں یہ النس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جب ہم بات کریں گے کیریکٹرسٹک کی، آنرشپ کی، ریلیشن شپ کی، النس کی ایز اے اسٹیٹ ورب تو ہم یوز کریں گے ہیو۔ اب ہیو کی فارمز دیکھتے ہیں۔ پہلی فارم ہے ہیو خود، نمبر 2 ہیڈ، نمبر 3 بھی ہیڈ ہے، سیکنڈ فارم بھی ہیڈ ہے، تھرڈ فارم بھی ہیڈ ہے، فورتھ فارم ہے ہیز، ففتھ فارم ہے ہیونگ جو کہ اسٹیٹ ورب میں یوز نہیں ہوتی۔ دوبارہ دیکھ لیں، پہلی فارم ہے ہیو، دوسری فارم ہے ہیڈ، تیسری فارم ہے ہیڈ، فورتھ فارم ہے ہیز اور ففتھ فارم ہیونگ ہے جو یوز نہیں ہوتی۔ اب اس کو میں نے اور آسانی کر لکھ دیا ہے کہ ہیو کہاں یوز ہوتا ہے، ہیڈ کہاں یوز ہوتا ہے، ہیز کہاں یوز ہوتا ہے، چلیں یہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں جب ہم بات کریں گے پاسٹ کی، یعنی میرے پاس پیسے تھے، میرے پاس بائک تھی، میرے پاس بوتل تھی، میرا ایک بھائی تھا، تو میں ہیڈ لگاؤں گا جب میں بات کروں گا پاسٹ کی۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے پریزنٹ، جب میں بات کروں گا پریزنٹ کی تو پریزنٹ میں لگتا ہے ہیو اور ہیز۔ مثال کے طور پر میرے پاس بوتل ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، میرے 2 بھائی ہیں، میرا کوچنگ ہے، میرے پاس بائک ہے، تمہارے پاس موبائل ہے، تمہارے پاس کار ہے، اس کے پاس فلیٹ ہے۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں پریزنٹ کی۔ جب ہم پریزنٹ کی بات کریں گے تو پھر ہیو اور ہیز لگے گا۔ ہاں ہیو کہاں لگے گا، ہیز کہاں لگے گا، میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر بات کرتے ہیں فیوچر کی، فیوچر میں لگے گا ول ہیو، میرے پاس بوتل ہوگی، آئی ول ہیو اے بوٹل، میرے پاس لیپ ٹاپ ہوگا، آئی ول ہیو اے لیپ ٹاپ۔ تو جب بھی میں بات کروں گا فیوچر کی تو پھر کیا لگے گا، ول ہیو۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ہیو کہاں لگتا ہے اور ہیز کہاں لگتا ہے۔ جب ہم بات کریں گے سنگولر سبجیکٹ کی، ایک کی، تو لگے گا ہیز۔ یاد رہے آئی اور یو نہیں آئے گا اس میں، جب آئی اور یو آئے گا تو اس میں ہیز نہیں لگے گا۔ جب ہم بات کریں گے پلورل سبجیکٹ کی تو لگے گا ہیو، اور ہیو کے ساتھ آئی اور یو، اور جب آئی اور یو آئے گا اس میں ہیز نہیں لگے گا، ہیو لگے گا۔ یو کو تو آپ ہمیشہ پلورل کاؤنٹ کر لیں اور آئی کو بھی آپ اس وقت پلورل ہی کاؤنٹ کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بات کریں گے آئی کی تو پھر ہم ہیو لگائیں گے، ہیز نہیں لگائیں گے۔ میں نے کچھ ایگزامپلز اور لکھ کر دی ہیں پاسٹ کی۔ آئی ہیڈ اے پین، میرے پاس پین تھا۔
she had belly ache, उसके पेट में दर्द था। they had a car, उनके पास कार थी। he had back ache, उसके कमर में दर्द था। I had two brother, मेरे दो भाई थे। we had good friends, मेरे अच्छे दोस्त थे। you had good nature, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। I have a pen, मेरे पास पेन है। she has belly ache, उसके पेट में दर्द है। they have a car, उनके पास कार है। he has back ache, I have two brother, मेरे दो भाई हैं। we have good friends, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। you have good nature, आपका नेचर अच्छा है। देखिए जब हम बात करते हैं प्लूरल की तो have लगेगा, और जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की तो have और has लग रहा है। अब आ जाएं फ्यूचर पर। फ्यूचर में भी आसानी है हमारे लिए, सिर्फ लगेगा विल हैव। आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन होगा। शी विल हैव बेली एक, उसके पेट में दर्द होगा। दे विल हैव अ कार, उनके पास कार होगी। ही विल हैव बैक एक, उसकी कमर में दर्द होगा। आई विल हैव टू ब्रदर, मेरे दो भाई होंगे। वी विल हैव गुड फ्रेंड्स, हमारे पास अच्छे दोस्त होंगे। यू विल हैव गुड नेचर, तुम्हारे पास अच्छा नेचर होगा। देखिए जब हमने बात करी फ्यूचर की तो यहाँ विल हैव लग गया हमारे लिए, सही। अब मैंने यहाँ मर्ज करके एग्जाम्पल लिख दिए हैं, यानी पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी दिखा दिया है, सही। यहाँ देखें, जब मैं बात करूँगा पास्ट की तो हैड लगाऊंगा, जब मैं बात करूँगा प्रेजेंट की तो मैं सेलेक्ट करूँगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा। हैव कब लगेगा, हैज कब लगेगा, चलें आप बताएं। हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई और यू के साथ, और हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर से मुराद एक, प्लूरल से मुराद एक से ज्यादा। अब आ जाए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनकी एक एक एग्जाम्पल सब मैं आपको बोलकर भी बता दूं और आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूं। पास्ट, आई हैड हेडेक, मेरे सर में दर्द था। और अगर मैं कहता हूं इस वक्त मेरे सर में दर्द है तो ये जुमला प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में क्या लगेगा, हैव या फिर हैज। अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या होगा। तो जुमला है आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है। अब बात है प्रेजेंट की, और सब्जेक्ट क्या है, आए। और मैंने आपको बताया था जब जब आए तो आपको प्लूरल काउंट करना है फिलहाल, यानी हैव लगाना है, सही। आ जाए फ्यूचर पर, मेरे सर में दर्द होगा, विल हैव लगेगा, सिंपल। आई विल हैव हेडेक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पास्ट में, दे हैड अ फ्लैट लास्ट ईयर, उनके पास एक फ्लैट था पिछले साल। दे हैड अ फ्लैट लास्ट ईयर, हैड लगाया। जब पास्ट की बात की तो फिर हैड लगाया। प्रेजेंट पर आए, उनके पास इस वक्त फ्लैट है। दे हैव अ फ्लैट राइट नाउ। देखें यहां पर हैव लगाया, क्यों? क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट की, और सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। और जब बात होगी प्लूरल सब्जेक्ट की तो हैव और हैज में से क्या लगेगा, हैव लगेगा। आ जाए फ्यूचर पर, दे विल हैव अ फ्लैट नेक्स्ट ईयर, उनके पास अगले साल फ्लैट होगा। आई होप आपको ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और ये कब यूज होता है आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव की तरफ, सही। इसका जो नेगेटिव है वो समझने वाला है, ये खाली नॉट वाला चक्कर नहीं है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये कॉन्सेप्चुअली समझना है। तो इसके लिए आपको मैं एक आसान हल पहले बता दूं कि इसके नेगेटिव में और इसके इंट्रोगेटिव में ना हैड आता है ना हैज आता है। हमेशा याद रखना इनके नेगेटिव में हैव आएगा। वो कैसे आए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड, डू, डज, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अब मैंने ये एक साथ लिख दिया है। डिड नॉट किसके साथ लगेगा, डू नॉट किसके साथ लगेगा, डज नॉट किसके साथ लगेगा और विल नॉट किसके साथ लगेगा, ये भी मैंने आपको नीचे बता दिया। जब हम बात करेंगे पास्ट की तो लगेगा डिड नॉट,
प्रेजेंट की बात करेंगे तो डू नॉट और डज नॉट, इन दोनों में से एक लगेगा। फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ डू नॉट किसके साथ लगेगा और डज नॉट किसके साथ लगेगा, सही। इसके बाद आ जाए फ्यूचर में, फ्यूचर में लगेगा विल नॉट, सही, विल नॉट। बस ये देखें मैंने इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ लिख कर दी है प्रेजेंट की, सही। और मैंने आपको बताया था जब जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आएगा तो आपका जो हैज होगा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा हैव में, आपका अगर हैड होगा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा हैव में। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, सही। मैं एक एग्जाम्पल ऐसे ही दे देता हूं, मेरे पास बोतल है, आई हैव आ बॉटल। मेरे पास बोतल नहीं है, आई डू नॉट हैव आ बोतल। क्या मेरे पास बोतल है, डू आई हैव आ बॉटल। अब मैं कहता हूं शाहजेब के पास बोतल है, शाहजेब हैज आ बॉटल। अब मैंने यहां हैज क्यों लगाया, मैंने आपको बताया था जब बात करूंगा सिंगुलर सब्जेक्ट की तो फिर लगेगा हैज। आए जब जब आएगा उसको प्लूरल काउंट करेंगे, सही। शाहजेब के पास बोतल है, शाहजेब हैज अ बॉटल। शाहजेब के पास बोतल नहीं है, शाहजेब डज नॉट हैव। वो जो हैज था, शाहजेब हैज अ बॉटल, अब नेगेटिव में क्या हुआ, शाहजेब डज नॉट हैव अ बॉटल। वो जो हैज था उसके नेगेटिव में हैव हो गया, पर उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आया, डज नॉट, ठीक है। डज नॉट हैव अ बॉटल, डज शाहजेब हैव अ बॉटल। तो जब जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या लगेगा, हैव, और हैज हैड गायब हो जाएगा, सही। तो नेगेटिव में, पास्ट के नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, प्रेजेंट के नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट आएगा। अब डू नॉट और डज नॉट कहां आएगा, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। जहां जहां हैव आए यानी अफर्मेटिव में जहां जहां हैव आए वहां वहां आप डू नॉट लगा दीजिएगा, जहां जहां हैज आए वहां वहां डज नॉट लगा दीजिएगा। एक एग्जाम्पल। नंबर 2, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट लगाना है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज नॉट लगाना है। आई और यू भी डू नॉट, आई और यू के साथ भी डू नॉट लगेगा, सही। आए यहां देखते हैं, प्रेजेंट की एग्जाम्पल मैंने लिख कर दी है। आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। आई डू नॉट हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द नहीं है। डू आई हैव अ हेडेक, क्या मेरे सर में दर्द है। शी हैज ब्यूटीफुल आईज, उसके पास खूबसूरत आंखें हैं। अब इसके नेगेटिव में डज नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि एक की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट। शी डज नॉट हैव ब्यूटीफुल आईज, क्या उसके पास खूबसूरत आंखें हैं, डज शी हैव ब्यूटीफुल आईज, सही। अब आ जाए एक और एग्जांपल, दे हैव अ फ्लैट राइट नाउ, उनके पास इस वक्त फ्लैट है। दे डू नॉट हैव अ फ्लैट राइट नाउ, उनके पास इस वक्त फ्लैट नहीं है। डू दे हैव अ फ्लैट राइट नाउ, क्या उनके पास इस वक्त फ्लैट है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे जोर दीजिए। जब सिंगुलर की बात हुई तो डज नॉट लगाया मैंने, जब प्लूरल की बात हुई तो मैंने डू नॉट लगाया, और तमाम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैव लगाया। हैज शो नहीं होता, मतलब हैज की जगह हैव आ जाता है। पास्ट की भी एग्जाम्पल देख लीजिए और बेहतर समझ में आ जाएगा। आई हैड हेडेक, मेरे सर में दर्द था। जब पास्ट की बात होगी तो डिड नॉट लगेगा, सही। मेरे सर में दर्द नहीं था, आई डिड नॉट हैव हेडेक। जो हैड था मैंने आपको बताया था नेगेटिव में वो हैव हो जाएगा, सही। आई डिड नॉट हैव हेडेक। इंट्रोगेटिव देखिए, डिड आई हैव हेडेक, क्या मेरे सर में दर्द था। अगर नेगेटिव सीख लिया आपने तो इंट्रोगेटिव तो ऐसे ही आसान है। नेगेटिव को पिक कीजिए, उसके नेगेटिव में हैव आएगा, और डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का चक्कर है, उसको पिक कीजिए। आ जाए दूसरी एग्जाम्पल की तरफ।
She had beautiful eyes. उसके पास खूबसूरत आंखें थी. She did not have beautiful eyes. उसके पास खूबसूरत आंखें नहीं थी. Did she have beautiful eyes? क्या उसके पास खूबसूरत आंखें थी? They had a flat last year. उनके पास पिछले साल एक फ्लैट था. They did not have a flat last year. उनके पास पिछले साल फ्लैट नहीं था. Did they have a flat last year? क्या उनके पास फ्लैट था पिछले साल? इसके नेगेटिव में देखिए, तीनों के इनके नेगेटिव में मैंने जो हैड था अफर्मेटिव में उसको हैव कर दिया है. मेरी पहले वाली बात मैं आपको याद दिला दूं, इनके नेगेटिव में हैव ही आता है, याद रखिएगा. देखिए, I did not have headache. She did not have beautiful eyes. They did not have a flat last year. तो इनके नेगेटिव में मैंने have लगाया है. सही. फ्यूचर देखिए, I will have headache. मेरे सर में दर्द होगा. मैंने बताया था फ्यूचर बहुत आसान होता है. will not लग जाएगा, हो जाएगी कहानी खत्म. I will have a headache. I will not have headache. Will I have headache? मेरे सर में दर्द होगा. मेरे सर में दर्द नहीं होगा. क्या मेरे सर में दर्द होगा? She will have beautiful eyes. उसके पास खूबसूरत आंखें होंगी. She will not have beautiful eyes. उसके पास खूबसूरत आंखें नहीं होंगी. Will she have beautiful eyes? क्या उसके पास खूबसूरत आंखें होंगी? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए. They will have a flat next year. उनके पास अगले साल एक फ्लैट होगा. They will not have a flat next year. उनके पास अगले साल फ्लैट नहीं होगा. Will they have a flat next year? क्या उनके पास फ्लैट होगा अगले साल? सही. आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत डीप में मैंने आपको समझाया है. और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑनरशिप, रिलेशनशिप, इलनेस की, मैंने आपको उर्दू लिख कर दी थी. इस वक्त अब आप इसकी इंग्लिश भी देख सकते हैं और आपको इजीली समझ में आ रही होगी. अगर नहीं आ रही समझ में इजीली तो ये लेक्चर दोबारा देखिए. मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से और एक एक चीज़ डीप में जाकर समझाई है. आई होप आपको समझ में आई होगी. और अगर नहीं आई तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप दोबारा स्टार्ट से देखिए, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी. और फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट या व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए राब्ता कीजिएगा. ओके. कैट हैज़ ब्यूटीफुल आइज. I have brown hairs. He has a beautiful face. Ownership. I have a bike. You have a mobile. They have a flat. Relationship. I have 2 brothers. I have a lot of relatives. She has 4 siblings. Illness. He has bellyache. You have headache. I have backache. I hope समझ में आई होगी. और हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा. और अगर इस लेक्चर में दोबारा कह रहा हूँ कोई इशू हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा. ओके. अल्लाह हाफिज़.